You start. Who's that? Fatima Wani. نحمده نحمده ونصلي على رسوله الكريم السلام عليكم سر. الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن رب اشرح لي صدري ويسر لي وعلمه رب اشرح لي رب اشرح لي وصدري أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Okay. So today we talk about the most beautiful person of this universe, and that is who? The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. So let's start. You are heading with the date. First date is Tuesday. It is Tuesday. What is my pen? Okay. It is Tuesday, 23rd September 2025. And it is first. It's too big. It is first Rabbi al-Thani. Rabbi al-Sani. So this is the fourth month of Islamic calendar. Rabbi, okay, Thani. Sir, clearly नजर नहीं आ रहा है. The Arabic words. Is this Muharram Safar? It's the fourth month of the Islam called Rabi al-Thani. So I will, this is your assignment. Write this in Arabic. How you write Rabi al-Thani in Arabic. But this is the fourth month. The first month is what? Muharram. Say with me. Muharram. That's it. We have 4 months. This is the fourth month. Today was the first Rabi al-Thani. So first month is the Muharram. Right? Muharram. Yes, second month is what? Thoda mota karein. Safar. Yes, Muharram. Second is Safar, Swad, Fa and Ra. Simple as it is. So Swad, Fa, Ra, Safar. Muharram, Safar. Then that is Rabi', Rabi', Ra, Ba, Ya, Ain. Rabi' and Awwal, Hamza, Waw, and Lam. Awwal, so that means there will be the Shadda on the Waw and the Fatah. And now your assignment is the right to fourth month, Rabi Asani. How you write it in Arabic? Just see the internet and write it. Now this was the date. We're not talking about the date. So today is what? First? Rabi Asani. Thani. 23rd September. So which month is Rabi Asani? Fourth. Fourth. First is? Muharram. Second? Safar. Third? Rabiul Awwal. Rabiul Awwal. And fourth is? Rabiul Thani. Rabiul Thani. Everybody be with me. Now you write the heading of your page. This was your date. That is our Muhammad. So you say meme and then you say ha. Then again you say the meme and you say the dal. Muhammad. So that's going to be Muhammad. So then we shadda on it and Muhammad. Ha ko bhi fatah hai. Muhammad. Yes. No. We read proper salahs. Then we write the Sallallahu Alaihi Wasallam. There's peace and blessings upon him. So how you write it? First, there is Swad. I will write in a different color maybe, so that you understand. Muhammad. Then there is a Swad. Write Swad with me. Then we say Swad and Lam and Ya without 2 dots. When we have Ya without 2 dots, what is it? Alif Maksura. Very good. It's Alf Maksura. So this is like this. I will erase it. I will erase this. Okay. Now this is Swad. And there is Lam and Alf Maksura. And then there is Allah. Write Allah like this.
Okay. Then there is Allah. So how we write it? This, listen here. This alf maksura, you don't read this. Hamzatul wasl, you don't read this. Lam at tarif, you don't read this. So this is swad, lam, and this lam combines. So sallallah. So sallallah. No, no, this lam you will read actually. This is sallallah. Sallal. Sallallah. No, no, not this lam at tarif. This lam you read. You read this lam on the shadda. Because lam at tarif won't be read because it is followed with a shadda. Sir, but I did 2 times Quite. Shatta. When this lam won't be read because this is lam at tarif, because followed by shadda, it will be silent. Alfa maksura will be silent. And this hamzatul wasl will be silent, and alfa maksura will be silent. This lam will combine with this lam. So sallallah. Okay? भी डाल सकते हैं ताकि समझ आए क्या पढ़ना है नहीं क्या पढ़ना है क्या नहीं नहीं, इसको आप ज़बानी याद रखो, इसमें ये नहीं डालना है। मैं डाल रहा हूँ क्रॉस आपके लिए, बट इसको आप क्रॉसेस व्रॉसेस मत डालो। ये पता है आपको होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। कंट्रोल जी, कमांड जी। he wrote it. There's the process. डोंट वरी, ओके। सो दिस इज सौद लॉम एंड या की शक्ल है सल्ली अल्लाह, लाइक दिस। बट जब अरबी में पढ़ेंगे तो या विदाउट 2 डॉट्स इज अल्फ मकसूरा, सो वी डोंट रीड इट। हमजतुल वसल बिकॉज कंबाइन हो रहा है तो नहीं पढ़ा जाएगा। लाम तारीफ के बाद शद्दा है तो ये भी नहीं पढ़ा जाएगा। तो यानी कि सौद और लाम, ये लाम इस लाम के साथ मिलेगा, बनेगा सल्लल्लाह। सल्लल्लाह अलैहि, उसके बाद क्या है? Alay. Wait a second. So this is ain, then lam, and ya, and ha. Alayhi, alayhi. So this is gonna be alayhi. So इसके ऊपर ज़्यादा जो है ना हम फता वता नहीं डालते हैं, ऐसे ही लिखो ताकि आपको खुद पता चलेगा कि आइन है, लाम के ऊपर फता है, या जो है यहाँ पे के ऊपर सुकून है। alayhi वसल्लम, वाव, सीन, लाम एंड मीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो ये हा है, इसको मैंने लंबा ज़्यादा किया, ऐसे नहीं लिखना है इसको। थोड़ा सा मैं फिर से लिखूंगा इसको। दिस इज आइन, दिस इज लाम, दिस इज या, एंड दिस इज छोटा हा। अलैहि। मैं ठीक लिखा यस, अलैहि वसल्लम। लाइन में लिखो ना, एक लाइन में क्या, ऊपर से इधर फिर यहाँ। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जो मुहम्मद है इसको हम बहुत सारे नामों से बोलते हैं। एक नाम जो है वो है, हम उसको नबी करीम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करीम। इसको डिफरेंट पेन से लिखूंगा। वी से इट इज ए नबी। नबी इज नून, बा एंड छोटी या, नबी। देन करीम, का, काफ, रिया, रा और या और मीम, करीम, नबी करीम। तो यू कैन से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लिखना है, यहाँ पर भी हम नहीं लिखेंगे, उसको दो डालेंगे। उसका मतलब है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहा है। यानी कि मोहम्मद बोले या नबी करीम बोले, या एक और नाम है कि हम बोलते हैं रसूलुल्लाह। क्या बोलते हैं? रसूलुल्लाह। यस, वी कैन ऑल्सो से रसूलुल्लाह। रा, र, सू, सीन, दम्मा और वाव, ये वाव मद्दा यहाँ पे है, रसू। देन लाम और दम्मा, रसूलुल्लाह। तो यहाँ पे अल्लाह लिखेंगे, और हमें पता है कि यहाँ पे जो है अलिफ हमजतुल वसल नहीं लिख पढ़ा जाएगा, लाम तारीफ नहीं पढ़ा जाएगा, और ये लाम इस लाम के साथ मिलेगा, अल्लाह के बीच वाले लाम के साथ, तो बनेगा रसूलुल्लाह। सो अब नबी और रसूल, इसमें क्या फ़र्क है? पहले ये जानेंगे हम, इसमें क्या फ़र्क है। दोनों का मतलब है कि मैसेंजर। दोनों का मतलब क्या है? नबी हो या रसूल हो, दोनों का मतलब है इज अ मैसेंजर। सर हम प्रॉफिट मोहम्मद को इसके बगैर भी और नाम से बुलाते हैं, बहुत सारे नाम है। सो नबी करीम, पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम नबी किसे बोलेंगे और रसूल किसे बोलेंगे। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों है। रसूलुल्लाह मींस अल्लाह का मैसेंजर, मैसेंजर ऑफ अल्लाह। सो रसूल अल्लाह, रसूलुल्लाह का मतलब क्या है? मैसेंजर ऑफ अल्लाह। आर यू विद मी?
Yes, sir. आप सब लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, this is writing practice. That's good, you write. Now अब नबी और रसूल में क्या फर्क है? नबी जो है, बहुत सारे नबी आए हैं। पहले जो नबी है, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे हम, इसमें दो, इसमें ऐसे बनाएंगे हम। यहाँ से हम लिखेंगे इसमें, देखो ये इसमें यहाँ पे लिखूंगा मैं, सिंगुलर नबी है, ये नबी हो गया, और ये रसूल हो गया, ये सिंगुलर है। अब मैं उसका प्लूरल क्या है? रसूल। प्लूरल अगर हमें यहाँ देखना है, प्लूरल क्या है नबी का? नबी का प्लूरल है अंबिया। अंबिया। इसको लिखा मैंने गलत, क्योंकि एक दांत भूल गया मैं या का। ओके, अलिफ नून और बा, फिर या, अन, बी, या, और या हमजा, अंबिया। और रसूल का प्लूरल है रसूल। रसूल, इसमें लाम वाव खत्म करना है, और रसूल प्लूरल है रसूल का, यानी कि बहुत सारे रसूलों को बोलेंगे वो रसूल, और बहुत सारे नबी को क्या बोलेंगे? अंबिया। एक Ambiya. लाख 24,000 अंबिया आज तक आए हैं, कम और पेश। अंबिया की स्पेलिंग क्या है सर? अलिफ नून बी, या, अलिफ और हमजा, अन, बी, या, अंबिया। अंबिया इज द प्लूरल ऑफ नबी। 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 इसको प्रैक्टिस Nabi. करनी है बाद में आपको, फिर आपको आराम से आएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर नहीं सीखोगे आप। सो अंबिया इज द प्लूरल ऑफ नबी, दैट्स मेनी नबी। और बहुत सारे नबी आए हैं, लेकिन रसूल जो है वो बहुत चंद आए हैं। अब फिर क्या फर्क है रसूल और अंबिया में? तो दोनों का तो मतलब मैसेंजर ही होता है। दोनों का मतलब मैसेंजर है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नबी भी है और रसूल भी है, लेकिन जो अंबिया है वो बहुत सारे आए हैं, बहुत बहुत सारे आज तक। जब से दुनिया बनी है तब से जो अंबिया है, जैसे आदम अलैहिस्सलाम पहले अंबिया थे, ठीक है, या नबी थे, सॉरी, अंबिया इज अ प्लूरल। तो नबी और रसूल में ये फर्क है, रसूल को आल्सो हैज द बुक, किताब दी जाती है। रसूल के पास किताब भी होती है। जैसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कौन सी किताब दी? कुरान। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास इंजील। इंजील। नॉट इंजील। इंजील, इंजील, इंजील इज द मॉडर्न डे बाइबल। द बाइबल जो बोलते हैं ना आज हम, उसको इंजील बोलते हैं। दे आर ऑल। इसी तरह से तौरात है, दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर ज़बूर है। तो यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर तौरात है। कुल कुछ ही रसूल थे जिनको कुछ किताबें दी गई हैं, लेकिन वो पूरा हम नहीं बता सकते, क्योंकि हो सकता है कि कुछ और भी हों जिनको भी किताबें थी, फिर वो डिलीट हो गई वो बुक्स एंड ऑल। उन हमें नहीं पता कितने रसूल थे, लेकिन रसूल जो होगा उसको किताब, मैसेज के साथ साथ किताब भी होगी, ठीक है। जैसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ अल्लाह ताला ने अपनी मैसेज ही नहीं दी, बल्कि क्या दिया? बुक भी दी। हदीस। नहीं, बुक दी, कुरान। बात समझ आई? हदीस हो गया जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, वो अलग बात हो गई। लेकिन जो अल्लाह ताला ने उनको दी, किताब दी, तो इसलिए वो रसूल भी है। नबी तो है ही है। नबी वो सारे हैं जिनको अल्लाह ताला ने मैसेज दी ताकि आप लोग उन तक पहुंचाओ, इट्स कॉल्ड नबी। लेकिन रसूल वो है जिसको साथ मैसेज के साथ साथ क्या दी गई? किताब। बुक भी दी गई। तो क्या हमारे प्रॉफिट किताब। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एवरीबॉडी डोंट डोंट म्यूट योरसेल्फ, नोबडी विल म्यूट, कोई म्यूट नहीं रखेगा, और जवाब दो साथ साथ। क्लास में इंटरेस्ट नहीं है तो निकल जाओ, भागो यहाँ से। सो इफ यू आर इन अ क्लास देन बी अटेंटिव एंड आंसर बैक। सो आई एम सेइंग द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नबी भी है, और क्या है? रसूल। यहाँ देखो, रसूल भी। और वो किसके रसूल है? अल्लाह ताला। अल्लाह के। Allah. इसलिए हम कहते हैं रसूलुल्लाह, अल्लाह का रसूल, यानी कि अल्लाह का मैसेज भेजने वाला। करीम क्या होता है फिर? नबी या करीम। नबी मीन्स अगेन द मैसेंजर। करीम हम बोलते हैं जो वही बहुत ही रहीम और करीम होगा ना, मर्सीफुल होगा, ये इसके साथ हम लगाते हैं नाम। करीम
अच्छा, अब हमें जो हमारा टॉपिक असल में है वो हमें पढ़ना है। हम्म, सर नबी को हमें नहीं कुछ लिखना है कि उनको किताब नहीं दी गई। हाँ, तो पता ही है ना, अब ज़बानी याद रखो। इसको मैंने लिखा ना, सिर्फ रसूल को लिखो, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। रसूल के पास किताब है ना, ये देखो, रसूल के पास क्या है? किताब। किताब। और नबी के पास किताब नहीं है, मगर मैसेज दोनों के पास है। मैसेज किसकी? मैसेज अल्लाह अल्लाह की। इसलिए हमारे ताला। हमारे कलमे के अंदर भी है ना, मुहम्मद रसूलुल्लाह। जो मुहम्मद है वो किसके मैसेंजर हैं? अल्लाह ताला के। ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। एंड मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मुहम्मद जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्या है? अल्लाह ताला के रसूल, यानी कि भेजे हुए पैगंबर, मैसेंजर, मैसेंजर ऑफ अल्लाह। आई समझ में? अब हमें पढ़ना यस है जो सर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और कभी कभार हम बोलते हैं, हम अब इसका नया टॉपिक लगाएंगे यहाँ पे, एक मिनट, नया टॉपिक लगाएंगे। ऐसे लाइन मारो पूरी कॉपी में, ऐसे लाइन मारो। अब लिखो यहाँ पे मोहम्मद, फिर से लिखो मोहम्मद। और कभी कभार हम पढ़ते हैं दिस इज मोहम्मद। ओके, हम ज़्यादा इसमें ये जो ना, ये हरकत नहीं लगाते हैं, तश्कील नहीं लगाते हैं, खुद ही पता होती है क्या है। जो मोहम्मद है उसको हम ऐसे भी पढ़ते हैं, सल्लल्लाहु, कैसे लिखेंगे? सल्ली पहले लिखेंगे, ओके, फिर लिखेंगे अल्लाह, सल्लल्लाहु, फिर ही, हा को कसरा है, सल्लल्लाहु अलैहि, अल्लाह अलैहि, सल्लल्लाहु अलैहि। तो कभी कभार हम ये भी लगाते हैं, व आलिही, व आली आलिही, व आलिही, ये हा है यहाँ पे, हाँ, व आलिही वसल्लम, वसल्लम। यानी कि हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पीस एंड ब्लैक्स तो भेजते ही भेजते हैं। वा मीन्स, यहाँ पे वा का मतलब क्या है? एंड आलिही, आल मीन्स फैमिली, उनकी फैमिली पर भी हम पीस भेजते हैं। सो हम मोहम्मद को रसूल भी बोलेंगे और नबी भी बोलेंगे, क्योंकि इनके पास कुरान है, किताब, और नबी तो है ही है, मैसेंजर है, और रसूल भी है। आई समझ में रसूल और नबी में फर्क? और हम इनको बोलते यस हैं सर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलैहि वो इनके ऊपर क्या हो, आ, यानी कि अल्लाह की रहमत, पीस, व आली वसल्लम, और उनकी आल पर भी। आल मीन्स फैमिली, आल मीन्स। और हमें पढ़ने हैं, फैमिली। हमें आज पढ़ना है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ। क्या पढ़ना है? औसाफ मतलब टॉपिक का नाम है मतलब औसाफ। इसने क्या किया? नहीं नहीं, औसाफ, इसका सिंगुलर, औसाफ का सिंगुलर है वस्फ। बस बस। अब क्या होता है औसाफ और वस्फ? इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। इसको हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लिखो, इट कैन बी, यू कैन से इट क्वालिटीज। क्या क्वालिटीज हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? इसको हम बोल सकते हैं एट्रीब्यूट्स भी, एट्रीब्यूट्स। आप क्वालिटीज बोलो, एट्रीब्यूट्स बोलो, प्रॉपर्टीज बोलो, ये औसाफ का मतलब है। या एंडाउमेंट्स बोलो, इंग्लिश वर्ड है एंडाउमेंट, ENDOW, एंडाउमेंट्स, MENTS, एंडाउमेंट्स। और कमेंडेशंस, और कमेंडेशन। का एक ही मतलब है इन सब वर्ड्स का, कमेंडेशंस। तो हमारा इंग्लिश भी स्ट्रांग बन रहा है, हमारा उर्दू भी और अरबिक भी। लेकिन इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फिर, अगर ऐसे नहीं चलता है, प्रैक्टिस के बगैर कुछ हासिल नहीं होता। ठीक हो गया? तो ये सारे जो है एंडोमेंट्स आप बोले, आप प्रॉपर्टीज बोले, एट्रीब्यूट्स बोले, क्वालिटीज बोले, कमेंडेशंस बोले, ये सारे अवसाफ होते हैं, या वस्फ से बोलते हैं। ठीक है? कभी कभार हम एक और लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं उर्दू के अंदर भी, या इसमें भी, सिफत, सौद फा और ताल, सिफत। और सिफत की प्लूरल क्या है? सिफात। सिफात। सिफात की प्लूरल सिफात है, उसका मतलब भी यही है, क्वालिटीज, प्रॉपर्टीज, ये सेम चीजें हैं।
लेकिन बेटर वर्ड है वस्फ, औसाफ, औसाफ। बेटर वर्ड इज औसाफ देन सिफत, क्योंकि इसमें सारी बहुत सारी चीजें आती हैं। ओके, एक और चीज हम इस्तेमाल करते हैं कभी कभार। पहले आप लिखो है, मुझे बताओ क्या आपने लिखा, फिनिश किया लिखना? वस्फ, औसाफ, सिफत, सिफात। Sir, I did a lot of writing. I never actually I didn't go to other page. You can go right on this side, no problem. Don't write on your nose also. Put ink on the nose. Right here. I can actually writing. Yeah, that's very good. Right. Sir, हम्म, ठीक, ठीक है। लिखा आपने बच्चा? Yes, sir. सिफत की Yes, प्लूरल, sir. हुरैन सिफत की प्लूरल क्या है? Sifat. वस्फ की प्लूरल? Awsaf. अवसाफ। स्वाद है, सा नहीं है, सौ है, अवसाफ। अच्छा मुझे बताओ, अवसाफ क्या होता है इंग्लिश में? इट इज क्वालिटीज, एट्रीब्यूट्स। आपने नहीं लिखा हुरैन? Yes, sir. Yes, sir. बताओ। Qualities, attributes, Okay. properties, endowments, commendations. So these are all, you can use them as Prophet Muhammad's commendations, Prophet Muhammad's properties, endowments, or attributes, qualities. And sometimes we use the words like this. Another word we use, which is called as ikhlaq hamida. We call it as what? Ikhlaq Hamida. Ikhlaq, qaf and chotiya, ikhlaq hamida. Hamida. हमीदा। Ikhlaq यहाँ ता मरबूता Hamida. है तो ये खुद जो है हा बनेगा, हमीदा। इखलाक सर हमीदा। यस। सर आपने औसाफ की नीति का क्या क्या फिर से बोले? औसाफ, औसाफ के नीचे औसाफ के नीचे है ना ये इसकी प्रॉपर्टीज, मैंने बताया ना औसाफ क्या होता है, क्वालिटीज, एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज, एंडोमेंट्स या कमेंडेशंस। सर ये इसका मीनिंग है, ये सारा एक ही वर्ड है। सर इकरा के हमीदा हमें यहाँ लिखना है ऐसे। इसके नीचे लिखो फिर एक और वर्ड, मैंने जैसे आपने किया ना सिफत, सिफात, अच्छा ऐसे इस तरह इखलाक हमीदा भी बोलते हैं हम। इखलाक हमीदा का मतलब होता है गुड कैरेक्टर। Hamida means good. Hamida means good. And इखलाक means character. जो कुरान क्लास अब है ना हमारा, ये इसका मकसद ही यही है कि आपके अंदर इखलाक हमीदा पैदा हो। ये असल मकसद है हमारा। ठीक है, कुरान को पढ़ना, कुरान यही सिखाता है कि आपके अंदर एक गुड कैरेक्टर बने, इखलाक हमीदा बने। क्या बने? Ikhlaq Hamida. हाँ, रखा याद? तो इखलाक हमीदा मीन्स गुड कैरेक्टर, हम ये भी इस्तेमाल करते हैं। लिखा आपने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जल्दी लिखो। No, sir. ट्राई टू राइट, डोंट वरी, टेक योर टाइम। इखलाक हमीदा मीन्स गुड कैरेक्टर। मैं इसकी पिक्चर भी बाद में भेजूंगा, लेकिन अभी लिखो। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू द राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ इट, डोंट पुश। ओके, और कभी कभार हम इसको बोलते हैं ऐसे भी, औसाफ, औसाफ, औसाफ तय्यबा। ये एक ही बात को अलग अलग तरीके से बोलने की ये है। सो औसाफ मीन्स क्वालिटीज, तय्यबा मीन्स द प्योर, मीन्स प्योर क्वालिटीज। अब हम कुछ क्वालिटीज जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं, जो औसाफ है, उस पर बात करेंगे। साफ को क्या लिखेंगे आप? औसाफ उन्हीं ना, मैं ये सारी मीनिंग तो औसाफ के ही है। सारे बता कोई एक वर्ड। क्वालिटीज हाँ ये तैयबा को मीन्स गुड और प्योर, प्योर। तय्यबा मीन्स प्योर, सो प्योर क्वालिटीज बोल सकते हैं इसको। यू कैन से दिस इज एज प्योर क्वालिटीज। तय्यबा मीन्स प्योर and awsaf qualities, Pure. Pure. pure qualities. Alina Gul and Imran Simra, where is your camera off? Okay, now let's start writing few awsaf. Awsaf means quality. Don't we write now from here? few awsaf हम लिखेंगे और इसके ऊपर आप
प्रैक्टिस करना फिर, और ये आपको बड़े काम में लग जाएंगे आगे। ये लिखा आपने बच्चा, ये जो मैं लिख रहा था, उसको हम रिवीजन भी करेंगे। इखलाक हमीदा, औसाफ तय्यबा, या आप बोलो सिफात, या आप बोलो औसाफ, किसके? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। व आलिहि क्या हो गया? और उनके फैमिली पर। आल मीन्स फैमिली। फैमिली। पहला जो क्वालिटी में हम देखेंगे वो है, हम बोलते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है शम्सुद दुहा। शम्सुद दुहा, तो हम कहेंगे शीन और मीम और सीन। शम्स, अल, फिर दुआद, दु, हा एंड अल्फ मकसूरा। So we know this is ha without two dots, so it's alif. So this is shamsud duha, shamsud। यहाँ पे अल्फ मक्स, ये हमजतुल वसल नहीं पढ़ा जाएगा, लामत तारीफ नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि दौद के ऊपर यहाँ पे शद्दा है। हम लिखते नहीं है लेकिन पता है हमें कि दौद के ऊपर शद्दा है, तो इसलिए शम्सुद दुहा बनेगा। लेकिन ये सीन इस दौद के साथ मिलेगा और अल नहीं पढ़ाया जाएगा, शम्सुद दुहा। अब शम्स किसे बोलते हैं? शम्स हम बोलते हैं सन को। शम्स किसे बोलते हैं? सन। यस, इट्स द सन। शम्स बोलते हैं हम सन को। अब दुहा किसे बोलते हैं? हम दुहा बोलते हैं मॉर्निंग लाइट। देखो, दिन में जो सन होता है ना वो तेज होता है, वो तकलीफ दे होता है, थोड़ा सा उसमें बैठा नहीं जाएगा ना। लेकिन मॉर्निंग का सन बड़ा अच्छा होता है। जो मॉर्निंग की लाइट होती है, मॉर्निंग का जो सन होता है ना, मॉर्निंग लाइट, वो बहुत खूबसूरत होती है। इसलिए हम, यानी कि वो आरामदेह होती है, पीसफुल होती है, जो सुबह की जो सूरज की रोशनी होती है। मेनी पीपल फेस टुवर्ड सन, ताकि वो मुंह पे पड़े। तो हम इसी तरीके से हमने क्वालिटी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कही है कि जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ही इज लाइक शम्सुद दुहा। ही इज लाइक व्हाट? रखा याद? लिखना कैसे है? शम्स अल दुहा, लेकिन पढ़ा जाता है शम्सुद दुहा। ये ज़ाद नहीं है इसको, ये दुआद है, दुआद। सो शम्सुद दुहा पढ़ेंगे, दुआ पढ़ेंगे, दुआ। शम्सुद दुहा। ये या नहीं है, ये अल्फ मकसूरा है, तो हा पढ़ा जाएगा, शम्सुद दुहा। वेरी गुड, मेरे 10 मिनट खाली बचे हैं। अब दूसरा वर्ड हम पढ़ेंगे, जो दूसरी क्वालिटी है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारी। ओके, बदरुद्दुजा। तो बद्र लिखें आप, बे और दाल, बद्र, दाल और रा, बद्र। फिर अल, और फिर दाल, जीम, एंड अगेन अल्फ मकसूरा, बदरुद्दुजा। इसमें भी दाल जो यहाँ है इस पे शद्दा है, हम लिखते नहीं है लेकिन ये शद्दा यहाँ पे है, यानी कि ये रा इस दाल के साथ मिलेगा, तो बदरुद्दुजा। और या नहीं है, ये क्या है? अल्फ मकसूरा। जिनको पता नहीं होगा वो परेशान होंगे, ये वो उसको पढ़ेंगे बदरुद्दुजी, क्योंकि उनको समझ नहीं आएगा ना ये अल्फ मकसूरा है। लेकिन आप लोगों को तो पता है ना ये अल्फ मकसूरा है, क्योंकि इसके पास दो डॉट्स नहीं है, ये जा है। बदरुद्दुजा, बदरुद्दुजा। Father अद्दजी। Al-Daji. Al-Daji. इसको पता नहीं होगा ना कि ये कैसे पढ़ना है, वो क्या पढ़ेगा उसको? बदर अल दजी। Father Al-Daji. हाँ, तो ये बदरुद्दुजा है, बदरुद्दुजा। बदर बोलते हैं मून तुझे को। बदर हम किसको बोलते हैं? मून को। मून को। हम कमर भी बोलते हैं मून को, और बदर भी बोलते हैं मून को। लेकिन मून असल विद लाइट इज कॉल्ड द बदर। कमर ऑल्सो मीन्स द मून। शम्स सन, शम्स हमने बोला सन को, बदर किसको बोला? मून को। और दुजा जो होगा, दुजा मीन्स डार्कनेस ऑफ नाइट। दुजा मीन्स डार्कनेस ऑफ नाइट। तो डार्कनेस ऑफ नाइट को कौन खत्म करता है भाई? मून करती है ना। दिन का उजाला। नहीं, दिन का उजाला नहीं, रात में जब चांद चमकता है ना, तो जब पूरा फुल मून होगी तो उसमें रोशनी आ जाती है ना इस अंधेरे में।
जो मून लाइट होती है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अंधेरे में मून लाइट जैसा है। क्योंकि उसने जहालत के ऊपर इल्म की रोशनी लाई ना। जो अरब के अंदर थी इतनी जहालत थी, वहां बेटी अगर पैदा हो गई ना तो उसको जिंदा दफनाया जाता था। उनको लगता था कि बेटी गलत चीज़ है। तो फिर इल्म आ गया, फिर प्रॉफिट मोहम्मद ने उनको नूर दिया। सो इट इज़ लाइक लाइट इन द डार्कनेस। सो इसलिए इसको बोलते हैं बदरुद्दुजा। ठीक हो गया। Yes, sir. सो तीसरा, सो शम्सु दुहा मीन्स मॉर्निंग लाइट, सन की। Morning light, sun. So it's like a sweet, that morning light of the sun of the Prophet Muhammad. एंड बद्र दुजा का मतलब है जो डार्कनेस हो, चमकते हुआ चांद, डार्कनेस ऑफ नाइट को जो तोड़ती है। उसके बदले हमने ये अवसाफ हम बता रहे हैं, हम ये क्वालिटीज बता रहे हैं ना प्रॉफेट मोहम्मद के अवसाफ बता रहे हैं। ठीक है। और हम उनको बोलते हैं खैरुल वरा भी। क्या बोलते हैं? जब दुआ पढ़ते हैं ना बहुत सारे प्रॉफेट मोहम्मद की, उनमें ये वर्ड्स आते हैं। अब आपको वो समझ आ जाएगा क्या बोलते हैं। खैरुल वरा, या अल्फ मकसूरा है। खैरुल वरा, रा और लाम मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे वाव के ऊपर शद्दा नहीं है तो लाम अत्तारीफ पढ़ा जाएगा, यानी कि ये रा और लाम अत्तारीफ पढ़ा जाएगा, अल्फ मकसूरा नहीं पढ़ा जाएगा। सो खैरुल वरा, खैरुल। सो खैर मीन्स समथिंग विच इज बेटर, विच इज गुडनेस। वी कैन से खैर का मतलब होता है गुडनेस। ठीक है। और या बेस्ट भी बोल सकते हैं, दैट इट इज बेस्ट। प्रॉब्लम इज द बेस्ट, बेस्ट एमंग होम, बेस्ट एमंग वरा। वरा का मतलब है मखलूक। वरा का मतलब क्या है? मखलूक। मखलूक मीन्स ऑल द क्रीचर्स। जितना भी अल्लाह ताला ने क्रीचर्स बनाए हैं, मखलूक मीन्स क्रीचर्स। क्रीचर्स मीन्स लिविंग क्रिएशंस। ओके। जितना भी अल्लाह ताला ने क्रीचर्स बनाए हैं, मखलूक बनाई है, मखलूक, मखलूक मीन्स एवरीथिंग विच इज अलाइव, दैट्स कॉल्ड मखलूक और क्रीचर्स। क्रिएशन मीन्स उसमें नॉन लिविंग चीजें भी आएंगी ना। तो क्रीचर में सिर्फ आएंगे जो जानदार होंगे, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो। उसमें सबसे बेस्ट हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुल वरा, खैरुल शमसुद्दुजा बदरुद, वरा। शमसुद्दुहा बदरुद्दुजा खैरुल वरा। ठीक है। बात समझ आई? Yes, sir. ये लाइन कहाँ से आ गई, कमांड से थोड़ा नीचे करना है। इसको हटाएंगे, एक मैंने रखा हुआ है। हाँ, अब दिख रहा है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. खैरुल वरा। अब नंबर कौन सा है? नंबर Fourth. फोर्थ। Fourth. सीख रहे हो कुछ या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. इनको हम यस सर। खैरुल अनआम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नहीं, ये खुद याद हो जाएगा। खैरुल, फिर लाम और अलिफ ऐसे। ओके। खैरुल अ, ये है अ, हमजा है यहाँ पे। नाम, खैरुल अनाम, खैरुल। Anam. द खैर अभी मैंने बताया, खैर का मतलब होता है बेस्ट और गुडनेस और समथिंग। ओके, विच इज गुड और विच इज बेस्ट और विच इज गुडनेस। खैरुल अनाम। अनाम का मतलब होता है क्रिएशन। अनाम का मतलब क्या होता है? Creation. इसमें हमने सब कुछ लाया। Creation. वो क्रीचर्स था, ये क्रिएशन है। क्रीचर्स मीन्स मखलूक, यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी जिंदा है, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो भी है मखलूक है, उसमें बेस्ट है। अब हमने कहा खैरुल अनाम, यानी कि पूरी जितना भी जो भी है दुनिया के अंदर, उसमें सबसे बेस्ट अगर कोई चीज़ है वो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए हम कहते हैं बादज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। याद रखो, बादज खुदा, पढ़ो मेरे साथ। बादज खुदा Badat Khuda. बुजुर्ग तू ही Budar किस्सा to मुख्तसर। be किस्सा यानी कि अल्लाह के मुख्तसर बाद अगर कोई मुतबर्रिक है, अगर कोई स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल है, या कोई बेस्ट चीज़ है, वो कौन है?
Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi वसल्लम। इसीलिए हमको बोलते हैं खैरुल अनाम, इसलिए तो बोलते हैं खैरुल अनाम, यानी कि जो भी क्रिएशन है, जो भी क्रिएशन है उसमें सबसे बेस्ट कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बोल रहे हो जैक? प्रॉफिट मोहम्मद। बस ओके यस सर Yes, sir. ओके, पांचवा लिखे हम, फिफ्थ। थक तो नहीं गए? सर नो सर ओके my hand is still been aching by writing. यू कैन स्टॉप। नूर, तो नूर, नून वाव रे, नूर अल हुदा, ये हा है यहाँ पे, दाल और ये, अगर आपको ये हा नहीं लिखोगे आप दुचेशम भी लिख सकते हो वहां पे, यहाँ पे नूरुल हुदा, इसको ये क्या है नूरुल दाल के बाद क्या है या अल्फ मकसूरा। नूरुल हुदा, नूर का मतलब होता है लाइट, नूर का मतलब क्या होता है? लाइट Eight. खुदा का मतलब क्या है, कोई बताएगा खुदा का मतलब? हाँ लॉर्ड नो, हुदा हुदा। अच्छा मैं आपको हिंट दूंगा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस पाथ नहीं, इहदिनस, खुदा इहदिनस सिरातल, हम क्या कौन सी बात बोलते हैं? इहदिनस, सीधी हिदायत, हिदायत नहीं बोलते हम, हिदायत क्या होता है? those you have favored. नो, हिदायत क्या होता है? हिदायत, हिदायत में हम कहते हैं ना कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, दैट मीन्स अल्लाह ताला आपको गाइडेंस करे, गाइड करे। वेरी गुड, किसी ने बोला। सो दिस इज गाइडेंस, दिस इज गाइडेंस। दिस इज लेस देन अ मिनट लेफ्ट, ये भी भाग जाएगा, इसको हम कंटिन्यू करेंगे इस क्लास को। ओके एंड इसका रिवीजन करेंगे, फिर आपको याद रहेगा। सो दिस विल कंटिन्यू दिस क्लास, दिस लेस देन अ मिनट। सो हम क्या पढ़ रहे हैं? औसाफ। क्या पढ़ रहे हैं बच्चा? ये खुद टफ लगेगा पहले पहले, लेकिन जब हम चलते जाएंगे, रिवीजन करते जाएंगे, ये बहुत एबीसी की तरह लगेगा। एबीसी किसी को टफ लगता है क्या? सर ओ अरीफा, सर एबी एबीसी, एबीसी टफ लगता है? एबीसी नो सर फिर ये भी नहीं लगेगा, कचमचे। सर ऑफ को क्या बोलते हैं अरबिक में? अरबिक में ऑफ मैं बताऊंगा, पहले के अपन मोकलो टाइम। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ?